students, welcome back to our channel RS Public School Barachor for next video related to the chapter Modern Period in History. This chapter belongs to for class 8 and this is the second video I am sharing with you. In previous class we have seen the difference between the ancient period, medieval period and modern period. तो मॉडर्न एंशिएंट पीरियड कब कहा जाता है? तो 8th सेंचुरी के पहले और 8th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी तक हो गया आपका मिडिवल पीरियड और फिर व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया तब से हो जाता है 18वीं शताब्दी टिल टुडे. उसके बाद हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था. उसके बाद हमने देखा था कि न्यू इन्वेंशन वॉयजेस. न्यू इन्वेंशन मीन्स हाउ न्यू इन्वेंशंस चेंज द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. वॉयजेस थ्रू वॉयजेस various sailors have discovered new routes to various part of the world to other countries. Profitable trade. We have also seen profitable trade. Profitable trade means how East India Company was established, then French East India Company was established, then Dutch East India Company was established. How the government or the kingship of their country permitted them to for overseas trade when they were fully satisfied that they will in return they will give a good amount of their profit share. After that we have seen colonizations, how other countries visited to the other countries and they colonized that country and they used the resources, all the natural resources for their own benefit of that country. India was also a colony of England. Now moving forward we are going to see next topics related to this chapter. Political revolutions. Political revolutions establish the right of people to participate in their own government in a revolution. In Britain, in the late 17th century, the monarch became answerable to the parliament. More such revolutions took place in France and North America in the 18th century. During the 18th century or before the 18th century, the kings were not answerable to anybody. They are the supreme body. उनके मन में जो आता था, they can take decision. वो किसी भी तरीके का कोई डिसीजन ले सकते थे. They are not answerable to anybody. But during the 18th century, the King of England was answerable to the Parliament. The pattern of ruling a country was changed. अब बदल रहा था जमाना. Now the people were demanding for democracy. They were demanding for right to vote. People should have right to choose their own leaders who will rule the country. And not only in England, France and North America, or in all these countries, new revolutions were taking place. Now we will see industrial revolution. As the voyages led to discovery of new land, trade grew in exceedingly great measure. The new lands provided new raw materials and ready market to buy product. Till this time, the domestic system of production was prevalent. The craftsmen collected raw materials from the merchant and worked at home with the simple tools. With the as the voyages started, new sailors like Vasco da Gama and many more sailors were Columbus, Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan. All these are sailors. When they started sailing and they discovered new lands, there they went with some new technique, and from there they took some new techniques which they were not known about. जिसके बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते थे, वहां से कुछ लिया और वहां के लोगों को भी कुछ दिया. In this way, when they started approaching new land,
न्यू मार्केट वॉज जनरेटेड, एक नया बाजार उत्पन्न हुआ। बिफोर दिस कहीं भी पहले कैसा होता था कि जैसे अपने देश के अंदर ही जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सामान, उसी का उत्पादन लोग करते थे, कच्चा माल लेकर के घरों में ही उसका उत्पादन करते थे। लेकिन अब उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिगरेट एंड बीड़ी इन इंडियन लोकल। बीड़ी को आप देखेंगे कि लोग अपने अपने घरों में ही बनाते हैं और घर में कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में उसको चलाते हैं। लेकिन जब फैक्ट्रीज वर सेटअप इन ऑर्डर टू मेक सिगरेट, अब सिगरेट को वो लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बेच रहे हैं, तो उसके लिए अब बड़ा कंपनी चाहिए जहां पे लोग लगातार काम कर सके, क्योंकि उनको पूरी दुनिया के लिए ही सिगरेट बनाना है और बीड़ी उड़ी का उत्पादन करना है। तो वो छोटे से क्षेत्र में अपने बाजार में वो लोग बेचते थे। तो अब वॉयजेस के साथ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नए नए जो टेक्निक्स आ रहे थे, उसके मदद से वो लोग ज्यादा उत्पादन कर रहे थे। तो ज्यादा उत्पादन जब होगा तो उनके लिए ज्यादा बड़ा बाजार भी चाहिए। दे विल नीड अ ग्रेटर मार्केट इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट। Increased demand for goods required mass production and effective system was invented. जब ज्यादा सामान की हमें जरूरत पड़ेगी, when we will need more and more goods, then we will set up an industry in which people will work for day and night. New machines were installed in the factories and the production was increased. Widespread use of machines and factories came to be called the industrial revolution. जब हाथ की कलाकारी को खत्म किया गया और मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा मास प्रोडक्शन के लिए, तो क्या हो गया, इसी को कहा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मीन्स इन हिंदी वी कैन कॉल इट उद्योग क्रांति। मीन्स उद्योग के क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं उनके क्षेत्र में क्रांति आया। जैसे पहले लोग कपड़ा बीनते थे हाथ से, अब उसमें इलेक्ट्रिक से चलने वाले मशीन आ गए। जो हम लोग सूता बनाते थे हाथ से चरखे पे, उसके लिए भी मशीन्स आ गए, जिसकी वजह से धागा बनाने की प्रक्रिया में तेजी भी हो गई, कपड़े बनाने की प्रक्रिया में तेजी हो गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो भी लो हो गया। तो जब वो लो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बाजार में उसकी कीमत भी थोड़ी कम होगी अन्य प्रोडक्ट्स से, जिसकी वजह से उसको बिक्री भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा बिकेगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूरोपियन कंट्रीज, द लैंड वाज अंडर वेरियस फ्यूडल लॉर्ड्स हु वर पावरफुल। दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड इम्पोज्ड फाइन्स ऑन फार्मर्स एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था कि लोग जमींदार थे, वो जमीनों पे टैक्स लेते थे, आराम से जीते थे और उसी टैक्स का कुछ हिस्सा अपने लिए भी रखते थे और कुछ हिस्सा राजा को या फिर जो भी गवर्नमेंट वहां चलाते थे उसको भी वो दे देते थे। वो बहुत पावरफुल लोग हुआ करते थे। आफ्टर द अराइवल ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम ए न्यू क्लास ऑफ पीपल अराइज हु वर द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज। अब एक नया तरीके के लोगों का भी उदय हुआ। पहले सिर्फ जमीन जिसके पास था वो जमींदार थे, पैसे वाले लोग थे, लेकिन अब जिनके पास फैक्ट्रियां थी उनके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, माल बन रहा था, बिक रहा था, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा आ रहा था। तो ये अब एक पावरफुल इकोनॉमिकली पावरफुल एक ग्रुप का जनरेट हो रहा था, मीन्स उदय हो रहा था। These people control the production and sale of their goods, or in other words, they control capital. Thus, they came to be known as capitalists. वो लोग बाजार में पूंजी निवेश करना, कितना बाजार में उत्पादन होगा, कितना बिका, कितना पैसा भी तो उन्हीं पास आएगा ना। तो आर्थिक रूप से वो लोग क्या होने लगे, मजबूत होने लगे और वो लोग बाजार को कंट्रोल करने लगे। They paid very less salaries to their worker and exploited them in numerous ways. वो लोग क्या करते थे, कम से कम तनख्वाह दीजिए, ज्यादा से ज्यादा काम कराइए तो मुनाफा ज्यादा लेंगे। This way, there were two distinct group of people: the capitalists or the ones who had money and all comforts, and the workers or have not, who worked hard yet did not earn much. अब समाज शहरों में दो प्रकार का हो गया। एक कैपिटलिस्ट लोग जिनके पास पूंजी था, पैसा था, और एक वो लोग मजदूर तबका जो मेहनत करते थे दिन रात, लेकिन उनके पास उतना ज्यादा पैसा रुपया नहीं हुआ करता था। मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। अब हम लोग देखिए, ये हमारा अभी तक हम लोग
मिडिवल पीरियड देख रहे थे, अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्न पीरियड का आगमन कब से हुआ? मुगल पीरियड एंडेड विद द डेथ ऑफ द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल औरंगजेब इन 1707। 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो औरंगजेब का शासन भी खत्म हो गया, मुगल शासन खत्म। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम केम अप। इंडिया वंस अगेन बिकम पॉलिटिकली अनस्टेबल। भारत फिर से एक बार अस्थिरता का देश बन गया, वहां अस्थिरता पैदा हो गई, क्योंकि जब तक औरंगजेब था वो ज्यादातर भारत के हिस्सों पे कब्जा किए हुए था और उसी के द्वारा बनाए गए नियम कानून चल रहे थे। लेकिन बाद में उसके मरने के बाद फिर से नए नए छोटे छोटे आजाद राज्य बन गए और वो लोग अपनी मनमानी करने लगे। The modern period began in the mid-18th century. At this time, the later Mughals, the Marathas and the East India Company fought for supremacy in India. अब मुगल, मराठा और इंग्लैंड के लोग जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे। क्यों? In order to capture various parts of India for their own use. अपने इस्तेमाल के लिए वो लोग लड़ते थे कि हमारे अधिकार में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल आ जाए। By the end of the century, the East India Company emerged victorious in the contest, colonized large part of India, और लास्ट में अंग्रेज जीत गए क्योंकि उनके पास बेहतरीन और ट्रेंड सिपाही थे, उनके पास बेहतरीन हथियार थे, डिसिप्लिन था, जिसकी वजह से वो लोग लास्ट में विक्टोरियस इमर्ज हुए, मीन्स जीतते हुए निकल गए वो लोग। The Mughal Empire collapsed completely after the Great Revolution against the East India Company in 1857. At the same time, in 1858, the company was dissolved and the British Crown took direct control of India. क्या बोल रहा है यहाँ पे? The Mughal Empire collapsed completely after the Great Revolt against the East India Company in 1857. 1857 में एक बगावत हुई थी, जिसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को यहाँ पे कम किया गया और 1858 में the company was dissolved and the British Crown took direct control of India. इंग्लैंड की सरकार ने भारत पे सीधा कंट्रोल स्थापित कर दिया। द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बिगेन आफ्टर दिस लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। और 1857 के जो आजादी के लिए हम लोग लड़े थे युद्ध, उसके बाद से लगातार छोटे मोटे युद्ध होते रहे और लास्ट में हम लोगों ने अपनी आजादी को अचीव किया। कब? 1947 में जाकर के भारत आजाद हुआ।